Hello student, today we will discuss the another topic of introduction to drug design is combinatorial chemistry. So combinatorial chemistry is a novel synthetic chemistry which enable the medicinal chemist to synthesize large number of chemical compounds, that is chemical library. The primary objective of this advanced medicinal chemistry is to reduce the cost and time of the drug discovery. The impressive outbreak in combinatorial chemistry was given by Robert Bruce Merrifield for the invention of solid phase peptide synthesis in 1963. Student, combinatorial chemistry, in a short form CombiChem, is a collection of technique which allow for the synthesis of multiple compounds at the same time. This powerful new technology has begun to help pharmaceutical companies to find new drug candidates quickly, save significant money in a preclinical development cost, and ultimately change their fundamental approach to drug discovery. Student, another topic है आपका drug design में last topic of this unit is combinatorial chemistry. कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बहुत एक नोबल सिंथेटिक केमिस्ट्री का एक टर्म है जिसमें हम लोग जो केमिस्ट होते हैं वो लार्ज नंबर में केमिकल्स कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं एट द सेम टाइम। जैसे कि आप लोग लैब में आप कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराता हूँ या फिर आपने लैब में कोई कंपाउंड बनाया तो आप एक टाइम में सिर्फ एक ही कंपाउंड बना रहे हैं और उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, पैसा भी खर्च होता है, वो तो होता ही है, केमिकल्स कंज्यूम हो रहे हैं, बट टाइम का बहुत मैटर होता है। ठीक है, अब ड्रग डिस्कवरी की बात करते हैं तो जहां पर हमें अननोन कंपाउंड्स भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो एट द सेम टाइम अगर हमें बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक विच अलाउ फॉर द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स एट द सेम टाइम। ठीक है, the definition of CombiChem, that is combinatorial chemistry, it is a technique by which large number of different but structurally similar molecules are produced rapidly and submitted for pharmacological assay, that is pharmacological testing or assay. This technique uses the same reaction condition with the same reaction vessels to produce a large range of analogues. In a combinatorial chemistry, large number of compounds are made at the same time in a small amounts, forming libraries which can be assayed for desired properties all at once. Finally, the active compound is identified and made in quantity as a single compound. Combinatorial chemistry encompasses many strategies and processes for the rapid synthesis of large organized collection of compounds called libraries. The collection is then tested for the biological activity. Finally, the active compound is identified and made in quantity as a single compound. स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा टर्म है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, हम ये कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स। अगर हमें किसी केमिकल कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है तो मैं आपको एक वैसल देता हूँ, बीकर देता हूँ, तो आप उसमें रिएजेंट मिलाते हैं, गर्म करते हैं, चाहे मिक्स करते हैं, स्टर करते हैं, तो आपको एक कंपाउंड आता है। ठीक है, जिसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही कंपाउंड आप बना रहे हैं, बट यहाँ पर आप एक टाइम में उसी कंपाउंड को आप कई मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। तो ये एक अलग ब्रांच है सिंथेसिस की जहां पर आप बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो लेकिन हम जब शुरू में हम बनाते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, जब हमें लगता है कि वो कंपाउंड बहुत अच्छा रहेगा, उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी, तो उसको हम आगे एसेज में, उनके बायोलॉजिकल टेस्टिंग में, और फिर उसके बाद हम जो अगर वो कंपाउंड बहुत अच्छा है उसके बाद हम उसके लार्ज अमाउंट में उस कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए कि कॉम्बिकेम दैट इज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है क्या। Right? Thus the combinatorial chemistry approach has two phases. मेकिंग ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर कलेक्शन या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स का एक साथ बनना, लाइब्रेरी। एंड द फाइंडिंग द एक्टिव कंपाउंड, जब हमने बहुत सारे कंपाउंड्स एक बार में बना लिए, अब हमें उसमें ये पता करना है कि उनमें से कौन सा कंपाउंड एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो बन जाते हैं बट वो बायोलॉजिकली एक्टिव कौन से हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो रिएक्शन दिखा रहा हूँ, एक कन्वेंशनल रिएक्शन और एक कॉम्बिनेटोरियल। तो ये कन्वेंशनल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम आपको प्रैक्टिकल लैब में कराते हैं तो आपने एक ए रिएजेंट लिया, बी रिएजेंट लिया, जैसे आपने ए बी बनाया, बट यहाँ पर कॉम्बिनेटोरियल में ए मॉलिक्यूल के साथ आपने अलग अलग मॉलिक्यूल लिए, फिर उसका बी लिए, तो आपको डिफरेंट कई सारे मॉलिक्यूल्स बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो ये अलग तरीके की टेक्निक है, इसका अपरेटस भी अलग होता है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था, केमिस्ट हैव ट्रेडिशनली मेड वन कंपाउंड एट ए टाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल रिएक्शंस।
फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ए वुड हैव बीन रिएक्टेड विद कंपाउंड बी टू गिव ए बी प्रोडक्ट, ठीक है, which would have been isolated after reaction work up and purification through crystallization, distillation और chromatography। ये हम जानते हैं, जब हम कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो हम उसको फिल्टर करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, मतलब आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। Now the principle of combinatorial chemistry: to prepare a large number of different compounds at the same time instead of synthesizing compound in a conventional one at a time manner, and then to identify the most promising compound for further development by high throughput screening. Okay, in combinatorial synthesis, different compounds are generated simultaneously under identical reaction condition in a systemic manner, so that ideally the product of all possible combination of a given set of starting material, termed building blocks, will be obtained at once. The collection of these finally synthesized compound is referred to as a combinatorial library. The library is then screened for useful properties and the active compound are identified, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है कि हम जिसमें हमने बहुत सारे कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स को जनरेट किया साइमल्टेनियसली, फिर उसको आइडेंटिटी उसी रिएक्शन कंडीशन में, उसके बाद हमने उसको सिस्टमेटिक वे में करते हुए, स्टार्टिंग मटेरियल लेते हुए, हमने फाइनली बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद हम उस लाइब्रेरी जो कंपाउंड्स है हमारे बहुत सारे, उनमें से हम एक्टिव कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल अप्रोच, combinatorial chemistry offers the potential to make every combination of compound A1 to AN with the compound B1 to BN। आपने देखा कि क्लासिकल सिंथेसिस दैट इज जो कन्वेंशनल सिंथेसिस A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो जो हम अभी तक करते हैं, बट यहाँ पर उसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए फिर बी अलग अलग लिए, जिससे हमने A1 से B1 बी और उसी से BN तक ले जाते हैं, मतलब BN N मतलब नंबर ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे वो अलग अलग सेट में कंपाउंड्स बनते जाएंगे। मतलब जब हम कन्वेंशनल मेथड में क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट लिया ए और बी लिया तो ए बी बन गया। यहाँ पर हम उस ए को हम कई बार लेते हैं, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो रिएक्शन एक साथ ही होगी और एक ही टाइम में होगी, तो वो एक ऐसी इक्विपमेंट होगा जहां पर हमने उसको बेसल में या फिर किसी सपोर्ट सिस्टम में ए को लिया, ठीक है, फिर हमने दूसरे में बी को लिया और ए बी आपस में रिएक्शन कर रहा है। इसी तरीके से हमने अलग अलग, मान लो हमने 50 कंपाउंड बनाने ए बी के, तो हमने 50 बार ए लिया 50 बार बी लिया, जिससे हमें 50 बार ए बी मिला। तो ये एक ही बार में बहुत सारे कंपाउंड का बनना ही कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है, इतना मतलब समझ में आ जाना चाहिए। In a conventional synthesis, one starting material A reacts with one reagent B, resulting in product AB. In a combinatorial synthesis, different building blocks of the type A are treated simultaneously with the different building blocks of type B, मतलब 1 to n. According to combinatorial principle, each starting material A reacts separately with all reagent B, resulting in a combinatorial library, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई, ठीक है, क्लियर। इन द नेक्स्ट स्लाइड कि क्यों जरूरत पड़ी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि जो कन्वेंशनल और जो क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड थी, तो यानी कि एक केमिस्ट एक ही मॉलिक्यूल बना पा रहा है, ठीक है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कैन ओनली मेक वन मॉलिक्यूल एट ए टाइम, ठीक है। ईच सिंथेसिस वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूम करती है, तो आप देखते हैं 3-4 घंटे तो लगती हैं। मल्टी स्टेप सिंथेसिस हैव लॉस एट ईच स्टेप, प्योरिटी नहीं आ पाती। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपने देखा ही होगा कि अगर हम प्यूरिफाई करें, क्रिस्टलाइजेशन करें तो बहुत टाइम लेता है। यील्ड्स कैन बी लो एंड प्रोडक्ट वेरी few molecules at a time for testing, ठीक है, क्लियर। स्लोअर लीड जनरेशन, मान लो हमें लीड कंपाउंड बनाना है, बहुत टाइम लग रहा है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है। हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए मंथ आर जनरेटेड, मतलब आप देख रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल एक महीने में आ रहे हैं। एंड हाई रिस्क ऑफ फेलियर, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म मालूम पड़ा, आपने कंपाउंड बनाया, 1 महीना लिया और पता लगा वो आपका मॉलिक्यूल डीएक्टिवेटेड था। द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस, तो वन केमिस्ट मल्टीपल मॉलिक्यूल, वहां पर एक था, can make multiple molecule at a time. The time and cost associated with generation and analysis of each individual molecule is significantly less when compared to the time and cost of an individual synthesis. देखो एक वही रिएक्शन प्रोसीजर में मान लो 3 घंटे लग रहे हैं, तो उसमें एक ही बन रहा है, बट इस मेथड के थ्रू हम अगर मान लो 100 कंपाउंड बना रहे हैं उसी सेम मॉलिक्यूल के, तो वो 3 घंटे में, अगर मान लो 3 घंटे का रिएक्शन प्रोसीजर है तो 3 घंटे में हमें 100 मिल जाएंगे।
तो yields can be high and produce many molecule at a time for testing, ठीक है। faster lead generation, thousands of molecule in a month, वहां पर हम 100 बना पा रहे हैं, यहाँ पर thousands में जा रहे हैं, low risk of failure and multiple molecular synthesis at a time, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट इज हम कंपैरिजन यहाँ देख लेते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्म में अभी देखा हमने। तो 1 molecule at a time, make purity test, 100 of molecules in a month, slow lead generation, high risk of failure। इसमें जस्ट अपोजिट, many molecules, make test, यहाँ पर प्योरिटी पहले करनी पड़ती है बट यहाँ पर टेस्ट पहले हो जाता है। 1000 of molecule in a month, faster lead generation, low risk of failure, synergized, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनेगा फिर लीड जनरेशन या लीड आइडेंटिफिकेशन होगा। तो प्रोसेस तो वही है बट कॉम्बिनेटोरियल हमने बोल दिया कॉम्बिनेशन, मतलब कि कई सारे उसी मॉलिक्यूल को हम कई फॉर्म में करके बना सकते हैं। दैट इज एप्लीकेशन, बात करें कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका बेसिकली एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ combinatorial chemistry are very wide. Scientists use combinatorial chemistry to create large population of a molecule that can be screened efficiently by producing larger, more diverse compound libraries. Companies increases the probability that they will find a novel compound of significant therapeutic and commercial value. Provide a stimulus for robot controlled and immobilization strategies that allow high throughput and multiple parallel approaches to drug discovery। तो ड्रग डिस्कवरी में भी वहां पर हमें लीड मॉलिक्यूल जब पता चल जाता है तो हमें उसकी सिंथेसिस करनी पड़ती है, तो वहां पर भी हमें लीड मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, तो पैरेलल सिंथेसिस अप्रोच आ जाता है इसमें। तो ये भी पार्ट है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, द फास्ट प्रोसेस, combinatorial approach can give rise to millions of compounds in the same time as it will take to produce one compound by a traditional method of synthesis। economical है, ठीक है। easy process है, isolation, purification, identification of active compound from combinatorial library is relatively easy। drug discovery, mixed combinatorial synthesis produces chemical pool। probability of finding molecule in a random screening process is proportional to the number of molecule subjected to the screening process। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी में जितने मॉलिक्यूल बना रहे हो रैंडम प्रोसेस के थ्रू वो आपका प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब्जेक्टेड टू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आगे हम जो ड्रग ऑप्टिमाइज करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए, तो पैरेलल सिंथेसिस प्रोडक्ट एनालॉग विद स्लाइट डिफरेंसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर लीड ऑप्टिमाइजेशन। तो पैरेलल सिंथेसिस अप्रोच ये हमारी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की टेक्निक है जिसमें हम ड्रग जो हमारी ड्रग मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज हुआ है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस, efficiently is highly affected by compound size, solubility and functional group। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम कॉमन होती हैं जैसे कन्वेंशनल में आती है कि कंपाउंड का साइज कैसा है या सॉलिबिलिटी, ये बहुत इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि कंपाउंड बना वो सॉलिबलाइज नहीं हुआ या कंपाउंड का साइज बहुत हैवी था कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं हुए। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोड्यूस टेंड टू बी एकारेल और रेसिमिक, अगर मान लो कि कंपाउंड रेसिमिक फॉर्म में आ रहा है तो उसको फिर रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम, कभी कभी इसमें टाइम भी लग जाता है, तो इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके सिलेबस में दो मेथड दिए हैं, सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज ऑफ टू टाइप, जैसे मैंने अभी बताया कि सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, इसमें इसका एक दूसरा नाम हमने इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कंपाउंड लाइब्रेरी सिंथेसाइज्ड ऑन सॉलिड फेज सच एज रेजिन वीट। ये आपको ध्यान रखना है, सॉलिड नाम दिया है तो इसका मतलब कोई सॉलिड सपोर्ट हमें यहाँ लेना पड़ेगा जिसमें हम रेजिन वीड लेते हैं, जो आगे मैं आगे डिस्कस करेंगे। Now the second is solution phase combinatorial chemistry, तो compound library synthesized in solvent in the reaction flask। तो नाम से पता लग रहा है यहाँ पर हम reaction flask लेंगे जिसमें कोई solvent लिया जाएगा, और solid phase में क्या लिया जाएगा, कोई एक solid phase that is resin, जो एक resins होते हैं तो उसमें एक resin का bead होता है। ठीक है, करेंगे। The first is solid phase combinatorial chemistry। तो solid phase combinatorial chemistry क्या होती है, in solid phase combinatorial chemistry the starting compound is attached to an insoluble resin bead, reagents are added to the solution in excess and the resulting product can be isolated by simple filtration which traps the beads while the excess reagent is washed away। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे हम, जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है हम उसमें इसको रेजिन बीड से अटैच कर देंगे, बाकी के रिएजेंट इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट जब बनेगा उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर निकाल लेंगे।
उसमें से जो बीड्स होती हैं उनको आगे ट्रैप्स करके बाहर कर देंगे, और जो एक्सेस रिएजेंट होता है उसको वॉशिंग करते हैं, जैसे हम कन्वेंशनल मेथड में करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें देखेंगे, स्टेप्स क्या क्या हैं। तो अटैच द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल टू एन इनर्ट सॉलिड रेजिन बीड, ठीक है, क्लियर। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ द रिएजेंट टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, जैसा कि हमने बताया। देन क्लीवेज एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बीड। जो बीड है ना अटैच्ड है, मतलब बीड आप जैसे मान लो कि गिट्टी सी है, ठीक है, बीड मतलब उसके साथ अपने रिएक्टेंट, अपने ऐड किए रिएक्टेंट रिएजेंट लगाए, और वहीं उसकी सिंथेसिस होगी, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट से उस रेजन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अब यहाँ बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले हमें सॉलिड सपोर्ट चाहिए, जिसको हम बोल चुके हैं रेजिन बीड होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है एन एंकर और लिंकर। अब रेजिन बीड के साथ जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कैसे बाइंड करेगा, लिंक करेगा, तो एक लिंकर और एंकर हमें चाहिए होगा। तो इसमें फिर एक और ए बॉन्ड लिंकिंग द सबस्ट्रेट टू द लिंकर, ए मींस ऑफ क्लीविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द लिंकर एट द एंड एंड द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ वन वन डिस्कस करते हैं। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सपोर्ट। जो हमने रेजिन वीट की बात करी, तो रेजिन वीट क्या होते हैं, पार्शियली क्रॉस लिंक्ड पॉलीस्टाइरीन वीट्स। पॉलीस्टाइरीन इज अ क्रॉस लिंक्ड with divinyl benzene, hydrophobic in nature, cause problem in peptide synthesis due to peptide folding. Shepherd polyamide resins more polar होते हैं। Tentazyl resin, ठीक है, similar environment to ether. Beads, pins and functionalized glass surface. स्टूडेंट ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ध्यान रखना होगा कि बीड्स कितने टाइप के हैं और ये क्या क्या यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इनके हम करेक्टरिस्टिक देख लें। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं कि एक रेजिन बीड है, ठीक है। The beads must be able to swell in the solvent used and remain stable. Most reaction occur at the bead interior. आप देख रहे होंगे ये एक रेजिन बीड है, ये देखा, जब इसमें जब हम सॉल्वेंट डालते हैं तो स्वेल करता है, और जो रिएक्टेंट है वो उसी के अंदर रिएक्शन होती है, जो आप देख रहे हैं इसमें। अब स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट एंड सॉल्वेंट लिंकर्स, जिसमें सब मिला हुआ होता है कि लिंकर ऐड करते हैं, लिंकर के साथ जो बॉन्ड है वो सारी चीजें इसमें हमें देखनी पड़ती है, और कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स भी डालने पड़ते हैं कि ऐसा ना हो कि रिएक्शन ना हो या रिएक्शन खराब ना हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सॉलिड फेज में हमें एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए, दैट इज रेजिन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से रेजिन्स होते हैं। अगर हम बात करें अब यहाँ पर लिंकर्स या एंकर, ठीक है, तो a molecular moiety which is covalently attached to the solid support and which contain a reactive functional group allows attachment to the of the first reactant, ठीक है। The link must be stable to the reaction condition in the synthesis but easily cleaved to release the final compound, ठीक है ना। लिंक पर भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लिंकर के साथ में मामला गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, वो उससे क्लीवेज ना हो पर प्रोडक्ट ही ना निकल पाए, तो हमें लिंकर भी ध्यान समझ के लेना पड़ेगा। तो different linkers are available depending upon the functional group to the attached and the desired functional group on the product. Resins are named to define the linkers. तो ये resins होते हैं, रेजिन के साथ में ही कुछ लिंकर्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर जैसे रेजिन के साथ एक मैरीफील्ड रेजिन, ठीक है, ये रहा, ये मैरीफील्ड रेजिन है। वैंग रेजिन, ये इसका स्ट्रक्चर है। रिंग अमाइड रेजिन, ठीक है, ये रिंग अमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। फोटोलेबाइल एंकर, ये फोटोलेबाइल एंकर है। और कुछ होते हैं ट्रेसलेस एंकर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो रेजिन हो गया सॉलिड सपोर्ट, और कुछ लिंकर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा हूँ, एक रेजिन है, जैसे मैंने बीट दिखाया था, लिंकर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर उसका जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो होगा। तो इसे ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो बैंक रेजिन लिंकर सुटेबल फॉर अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो बैंक रेजिन यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। इसी तरीके से मैरीफील्ड रेजिन यूज किया जाता है पेप्टाइड प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सारे पेप्टाइड सिंथेसिस में काम आता है, बहुत सारी रिसर्च इन पर होती है। रिंग रेजिन लिंकर्स सुटेबल फॉर अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ कार्बोक्सामाइड, ये मॉइटी है कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो लिंकर के साथ यहाँ पर ये एंकर लिंकर और रेजिन के साथ ये मॉइटी हम लेते हैं सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री सिंथेसिस में। नाउ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जो हमने देखा था प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या रहते हैं।
तो a protecting group is reversibly attached to the functional group to convert it to a less reactive form. ठीक है, when the protective is no longer needed, the protecting group is cleaved, move कर दिए जाते हैं, and the original functional group is restored. अगर हमें जरूरत है प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे. Protecting group to be stable under the expected reaction condition and to be cleavable if possible at mild reaction condition. ठीक है, तो ये स्टेबल होने चाहिए. सम ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पेप्टाइड सिंथेसिस, जो कि साइंटिस्ट हैं उन्होंने ब्रूस मैरीफील्ड, तो उन्होंने पेप्टाइड सिंथेसिस की थी, तो वहां कुछ प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाए गए जिसमें बेंजाइल कार्बोनाइल ग्रुप प्रोटेक्टिंग ग्रुप, टर्शरी बिटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप बीओसी बोलते हैं इसको, 9 फ्लोरोनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप एफएमओसी, ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको नाम तीनों के रखने हैं याद, ये कि बेंजाइल कार्बोनिल, टर्शरी बिटॉक्सी कार्बोनिल एंड 9 फ्लोरोथाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप. अब आपके सामने है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का ये इक्विपमेंट देख रहे हैं आप, इसमें कई सारे वेसल्स लगी हैं. ठीक है, रिएजेंट डाले जाते हैं, यहाँ पर सेम टाइम में रिएक्शन होती है. वहां पर आप देखते होंगे आपने लैब में क्या करते हो, आप सिंपल एक असेंबली लेते हो, तो वहां पर एक बंदा एक बना रहा है. ठीक है, तो वन केमिस्ट वन कंपाउंड इज कन्वेंशनल एंड वन केमिस्ट एंड मैनी कंपाउंड सिंथेसिस इज कॉम्बिनेटोरियल. नाउ द नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस, कि सॉलिड फेज सिंथेसिस के क्या एडवांटेज होंगे. स्पेसिफिक रिएक्टेंट कैन बी बाउंड टू स्पेसिफिक बीड्स. ठीक है, beads can be mixed and reacted in the same reaction vessel. Okay, products formed are distinctive for each bead and physically distinct. Excess reagent can be used to derive reaction to completion. Excess reagent and byproducts are easily removed. Reaction intermediates are attached to bead and do not need to be isolated and purified. Individual bead can be separated to isolate individual products. Polymeric support can be regenerated and reused after cleaving the product. Automation is possible. ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखने कुछ एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उनके हमें ध्यान रखने की, जो सॉलिड फेज में हमारे तो सबसे पहले सॉलिड सपोर्ट दैट इज रीजन होगा, लिंकर होगा, प्रोटेक्टिव ग्रुप होंगे. तो ये इनके हमें अच्छी बातें को बताना है, तो ये कि अच्छे हैं कि हमारे बहुत इजीली अटैच्ड भी हो जाते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं और इजीली इनको हम ट्रैप कर सकते हैं. तो ये एडवांटेजेस हैं. अब कुछ एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस, नॉट ऑल सिंथेसिस कैन बी डन सॉलिड फेज. ठीक है, क्योंकि सॉलिड फेज पे सभी रिएक्शन नहीं हो सकती हैं. सम मॉलिक्यूल डू नॉट अटैच वेल टू बीट. ठीक है, सम केमिस्ट्री जस्ट डू नॉट वर्क इन दिस फैशन. रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बीट कैन बी डैमेजिंग टू प्रोडक्ट इफ नॉट केयरफुली. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये डिसएडवांटेज, अगर मान लो सभी मॉलिक्यूल की रिएक्शन नहीं हो सकती, सारे प्रोडक्ट मतलब रिपीट से रिमूव नहीं किए जा सकते, या फिर कुछ केमिकल इसमें काम नहीं कर पाते. तो टिपिकली काइनेटिक्स नॉट द सेम. रिएक्शन रेट्स कैन बी स्लोअर. ठीक है, डिफिकल्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस और रिएक्शन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स आर अटैच्ड टू द सॉलिड फेज. Assessment of the purity of the resin attached intermediates is also difficult. Purifying the final product after cleavage from the resin also proves to be a challenge. बहुत, क्योंकि प्यूरिफाई करना बहुत चैलेंजिंग का काम होता है, क्योंकि उसमें से आपको रेजिन को ट्रैप करना है और रेजिन ट्रैप करते हुए प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. ठीक है, प्योरिटी नहीं आ पाएगी, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, दैट इज सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री. नाम से पता लग रहा है सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस इन्वॉल्व conducting chemical reactions simultaneously, preferably in well-ordered set of reaction vessel in a solution. यहाँ पर हमें रिएक्शन वेसल लेनी है, जैसे चाहे तो कॉनिकल फ्लास्क ले लिया. ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लास्क ले सकते हैं, आयोडीन फ्लास्क ले सकते हैं, बीकर ले सकते हैं. ठीक है, एक बहुत ऑर्डर सेट में लेते हैं. मोस्ट ordinary synthetic chemistry take place in solution phase. The use of solution phase techniques has been explored as an alternative to solid phase chemistry approaches for the preparation of arrays of compound in the drug discovery process. तो सेट्स हम यहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल्स के बनाते हैं, जो ऑल्टरनेटिव मेथड है, जहाँ पर सॉलिड फेज काम नहीं आती तो वहाँ सॉल्यूशन फेज काम आएगी. ठीक है, solution phase work is free from some of the constraints of solid phase approaches but has disadvantage with respect to purification.
The main disadvantage of this method is when number of reagents are taken together in a solution, it can result in several side reactions and may lead to polymerization, giving a terry mass. Therefore, to avoid this, the new approach is developed in which all chemical structure combinations are prepared separately in parallel on a given building block using an automated robotic apparatus. For example, hundreds and thousands of vials are used to perform the reactions and laboratory robots are programmed to deliver specific reagent to each vial. तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है जहां पर हम रोबोटिक्स अप्लाई कर रहे हैं. बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. यहाँ पर हम सोल्यूशन लेते हैं सॉल्वेंट सिस्टम, बट इसका मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें साइड रिएक्शंस हो जाती हैं, पॉलीमराइजेशन होता है, टेरी मास बन जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जैसे एपरेटस दिख रहा है आपको, ये वेसल्स ली हुई है इन्होंने, एक बहुत बड़ा सेपरेटस है. यहाँ पर सोल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री या सोल्यूशन फेज केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन चल रही है. So all chemical reactions are conducted simultaneously, preferably in well-ordered set array of reaction vessel in a solution. Soluble polymer are used to support for the product. यहाँ पर हम polymer लेते हैं, soluble होता है जो कि एक solution form में रहता है. ठीक है, वहाँ solid form में था. Limitation क्या है? When number of reagents are taken together in a solution, it can result in several side reaction and lead to polymerization. ये आपको याद रखना है ये दो, और giving a terry mass. ये दो important इसके disadvantage limitations हैं. Now the characteristic and comparison of solid phase and solution phase combinatorial chemistry बहुत important topic है. तो बात करें तो make a mixture of product, इसमें mixture बनता है, इसमें makes only one product. ठीक है, small amounts of product are formed, इसमें large amount are formed. Simple isolation or produced by filtration. Work up and purification more difficult, इसमें difficult होता है, यहाँ simple होता है. Require two extra reaction steps, linkage and cleavage, क्योंकि linker हमें देना पड़ता है इसलिए cleavage. नो एक्स्ट्रा स्टेप, क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. ठीक है, पॉलीमर डाला, रिएक्शन कराई और फाइनली हमें इसका आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन कर दिया. लिमिट्स टू केमिस्ट्री विच कैन बी परफॉर्म. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी अप्लाइज्ड. ऑटोमेशन पॉसिबल, इसमें ऑटोमेशन डिफिकल्ट होता है. लार्ज एक्सेस ऑफ रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिराइव द रिएक्शन टू कंप्लीशन. ठीक है, ध्यान रखना है, लार्ज एक्सेस ऑफ रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज इट कॉजेज सब्सिक्वेंट सेपरेशन प्रॉब्लम. ठीक है, लॉन्गर रिएक्शन टाइम देन इन सोल्यूशन पे लॉन्ग टाइम लगता है, इसमें लेस रिएक्शन टाइम लगता है. मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन वेरी डिफिकल्ट और मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन इज इजी. तो ये इसका कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर आपने पूछा जाता है सॉलिड फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो आप ये वाले पॉइंट्स डाल सकते हैं, इसी तरीके से सोल्यूशन फेज की डाल सकते हैं, और इनके बीच में कंपैरिजन आए तो ये आप 5 6 7 पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.